You wanted to be famous. For me, fame is Shah Rukh Khan. Everyone knows Shah Rukh Khan, not me. So that is the level of fame that I want. You popular as a person in your class? स्कूल के सामने कैंटीन हुआ करता था, समथिंग आई डोंट नो, सम शॉप्स जहाँ बच्चे खाना वाना खाने जाते थे, तो एक वॉल थी, किसी ने उस पर लिख दिया था आई लव उर्फी जावेद. Are you giving auditions these days? Because I know that your real dream is to act. My real dream is money, but I don't mind acting. Audition, यार पता है वही मेरे अंदर एटीट्यूड इतना आ गया है ना, तो आई एम लाइक मैं क्यों ऑडिशन दूँ. उर्फी, आप दिल के बहुत अच्छे हो, क्योंकि जो नहीं जानते, जो आपके पीआर है, जब उनका बर्थडे था उन्होंने अपनी स्टोरीज पे डाला था कि कैसे आपने उनको आईफोन गिफ्ट किया. या ऑल्सो देयर इज एन इन्फ्लुएंसर अनीश, आई गेस, आपने उनकी जो हाउस हेल्प है उनको साड़ीज भेजी. आपको नहीं लगता कि वो चीज़ें लोगों को आपके बारे में ज़्यादा पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका एक थोड़ा ऐसे हार्ड शेल है, लोग वो पार्ट देख नहीं पाते हैं. क्यों दिखाना है मुझे? ये मेरे दिख रहे हैं ना बहुत है, बाकी उसके अंदर का देखने की ज़रूरत नहीं है. आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे आप जब शायद 15-16 साल के थे, आपकी बस एक क्रॉप टॉप में कोई फ़ोटो किसी ने पॉर्न साइट पर डाल दी. अगर उस टाइम सुसाइड कर लेती तो मर जाती, सुसाइड नहीं करी तो इस वजह से आई बिकम लाइक वेरी थिक स्किन नाउ. यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. अब तो पॉर्न साइट पर डालो, जो करना है करो, मुझे अभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. अगर आप और छोटे कपड़े पहनोगे तो लोग आपको उस तरह से समझेंगे. Like you mean like a slut? Yeah, I mean there is slut shaming. There is no. But I want to be slut shamed. I like that. I want to be called the slut. Some guy from Neeraj Pandey's office. I don't know if मैंने पुलिस कंप्लेन भी करी थी उसके खिलाफ. पता नहीं क्या हुआ उस पुलिस कंप्लेन का. He just called me like नीरज पांडे के ऑफिस आना है. मैंने कहा कौन है नीरज पांडे? मैंने ऐसे ही बोला मैं नहीं जानती. तो बोलता है कि कैसे नहीं जानती, मैं उसका असिस्टेंट हूँ. He started abusing me कि तू सड़क पे नंगी घूमती है, तेरी क्या औकात है. Hi, this is Urfi Javed and you're watching Bollywood Hangama. Hi, I'm Sakshi Arora and I'm at this beautiful location called Blabber All Day in Mumbai. And today, Urfi Javed would be joining me for a wonderful conversation. So stay tuned. Hi Urfi, welcome to Bollywood Hangama. Thank you, thank you. First of all, I would like to ask you, you wanted to be famous since you were a little girl. Have you had the time to give a pat on your back and say, okay, I have become famous, I am living my dream? I don't think so. I'm famous enough yet. Come on, everybody knows you. Every superstar of Bollywood knows you. No, everyone with internet access. But not, what about people who don't have that? So I want to have that. For me, fame is Shah Rukh Khan. Everyone knows Shah Rukh Khan, not me. So that is the level of fame that I want. Anything below that is not worth pat on my back. Okay, I hope that you get that too. You have spoken about how your childhood was difficult, right? And your relationship with your father and everything, right? I think being a girl, the first male figure that's in your life is your father. So how has that relationship shaped your relationship with other males? Do you think you kind of face issues while connecting with males in general? Now that you say it, you mean if I have daddy issues or not? In short, that's daddy issues. I think, I don't know, man. But the fact is that I am not seeing anyone. My relationships don't last. They're very f***ed up. And maybe I think, yeah, it has affected some way or the other. I need to think about it, give it time, but I don't think about it. But the fact that I can't maintain a relationship, I don't even have male friendships a lot. So that may be the case. Yeah. So I have to congratulate you on your Vogue, this thing, and Abu Jani and Sandeep Khosla. That event, you look stunning, by the way, at that event. So, when you finally get recognition for your fashion, because initially you got a lot of criticism for your fashion choices. People had a lot to say because they had not seen someone like you in our country, right? So I guess first time, and especially being a girl, I think you are more prone to criticism than anyone else. How was that journey, from being criticized to being recognized by the stalwarts of the fashion world? Okay, again, I'm not recognized. Fashion world still doesn't give a fuck about me. No one does actually. I don't feel I've achieved anything. I don't feel anyone gives a fuck about me. I don't know what you're saying actually, because I don't feel I've achieved anything.
Okay. Maybe a little bit of fame, but that is not anywhere near what I want. Well, see, I know that I'm not living your life, but I feel that you have achieved a lot. No. You have given your family such a great life. You are able to afford whatever you want. You have a safety net now when it comes to your finances, and That is the problem. I don't have a safety net. You know, I feel whatever I am doing, it is such a risky thing, you know. कभी मेरे पास 2 महीना है अच्छा पैसा आ रहा है, कभी 3 महीना मैं कुछ भी नहीं कमा रही हूँ. तो ये भी एक इशू है. Because I have chosen this what I've chosen, it's very risky. Also, whatever I earn, everything goes back to in creating new things. Yeah. As in मैं जो भी कमाती हूँ ना, वो mostly चला जाता है वापस से ही वही चीज़ें करने में. But I'm not saying I don't live a good life. I live a good, comfortable life. My family lives a good life now. But is it what I want? No. uncertainty है काफी. हाँ है तो. But this is what I've chosen for myself. राइट. आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, हमने अपने पेज पर डाला था, एंड आपको इतने अच्छे कमेंट्स आए कि लाइक you know, oh my god, she looks so cute, she was so pretty, I can't believe that she had that innocence, right? मुझ जैसी चीज जब गली में बाहर निकलेगी तो लड़के तो घूरेंगे ही ना, आंखें थोड़ी बंद कर लेंगे. Oh God! Ew! No, I don't want to see this. Oh I god, don't want come to see on. this. Ew. What does this remind you? I think this was one of my initial days in Bombay. I think मुझे 1 महीना ही हुआ था. If you see, my teeth are crooked and I have those chubby cheeks. Come on. Yeah, my teeth were like really crooked. I can't see a flaw. I genuinely No. can't see a flaw, and trust me. I got my teeth Yeah. fixed. I got I got my lips filled. I got things done. As in, I worked on myself. I started exercising. I lost that baby fat. I only see flaws. When you showed me that video, I didn't even want to look at it. I don't know what people. So I think that I don't want to look at it. Okay, you know, the thing is that I have interviewed many celebrities, right? And most of them say that, you know, when they were auditioning, people were like, किसी आपके eyebrows, कोई मतलब एकदम ऐसी चीज़ें बोल देते थे कि लगता है कि अच्छा ये भी चीज़ें notice होती है. Like, you know, Ayushmann said that people were like कि तुम्हारी eyebrows are distracting. Someone says that, you know, you are too tall. Someone says you are too thin. Someone says this and that, right? And to the audience, they are like the most good-looking people of this country. And you also told that you used to think that you were very pretty, but when you started getting वही हुआ ना. अभी मैं ऑडिशन देने गई, जैसे इसमें गई तो मुझे बोला तुम्हारे दांत सही नहीं है. हाँ. आगे पीछे हैं. तो फिर मैं धीरे धीरे, और मुझे बोला किसी ने बोला तुम्हारे गाल फूले हुए हैं, एक्सरसाइज करो. मतलब ऐसी हाँ चीज़ें तो हुई हैं. अभी what do you think about your looks at this point? I like myself now. I think I look good. Yeah. I can't lie. I mean, but I don't mind a nose job. You don't need it, but if it's your choice, then I don't whatever mind. you I want. don't mind. Yeah. नीड तो किसी चीज़ की नहीं है यार. खेल तो सारा ये वांट का ही है. नीड तो फिर इंसान को 2 वक्त का खाना मिल जाए बहुत है. पर नीड के ऊपर नहीं रहना है ना. So I'm like totally pro filler surgeries or whatever. I feel it's okay. What gives you the confidence to accept कि हाँ मैंने कराया है? Because most of the celebs like I am natural and I have not done anything. I can understand that, you know, because as soon as you tell the world that I have done something, so people will be like, अरे ये तो plastic surgery कराई है, ये तो plastic है, ये है वो है. I can understand why do celebrities don't admit, right? And also I think एक charm रहता है कि कहीं ना कहीं because looks are so important for every person, everyone wants to look good, कि कहीं ना कहीं कोई बोलता है मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई तो कहता है हाँ वो तो इसलिए अच्छा लगता है कि you know they have done that thing. So what gives you the confidence to be like, okay, I'll accept what I have done? Because अभी you showed me that video. Now you compare it. अब अगर ऐसे side by side रखोगी तो साफ दिखेगा यार. मतलब there is no point of lying about it. So instead of someone else telling me, you know, or maybe अगर मैंने शायद एडमिट नहीं किया होता, there would have been so many articles कि उर्फी ने ये कराया, उर्फी ने वो कराया. But right now ऐसे कोई आर्टिकल्स है नहीं बिकॉज मैं खुद ही बोल रही हूँ. So there's no gossip about it. So I think taking part makes you feel good about yourself.
let's go back to your Lucknow days. I have lived in Lucknow for 4 years, Oh, and nice. the culture is Where in very Lucknow? different. So I used to live in LDA colony. अच्छा, So हाँ. I was in Lucknow Public School. Which school were you in? मैं तो सिटी मॉन्टेसरी CMS. Okay, yeah. okay, great. So the culture is so different कि कई बार when you come to a metropolitan city, तो आपको तो कल्चर शॉक लगता है, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं उनको भी देख के आपको उनका भी एक माइंडसेट होता है कि अच्छा आप लखनऊ से है, अच्छा तो आप उर्दू बोलते होंगे, आपको तो उर्दू आती होगी, या फिर दे हैव दिस सेंस. So when you came to a big city, I think you were in Delhi before Mumbai, if I'm for not 1 year, wrong. Yeah. So did you think that people looked at you differently because you were from Lucknow? नहीं, ऐसा है नहीं, मतलब मुंबई में इतना आई डोंट थिंक सो, या फिर मैंने उतना सोचा नहीं कि वो क्या सोच रहे हैं. Right. आई वाज इन माई ओन वर्ल्ड. आई नेवर बॉदर्ड टू थिंक कि अच्छा मैं लखनऊ से हूँ तो इसलिए सोच रहे होंगे. मे बी आई वाज टू कंज्यूम्ड अबाउट माई लुक्स कि आई स्टॉप्ड केयरिंग कि कहाँ से या बैकग्राउंड, उतना नहीं सोचा मैंने. Right. अच्छा, going back to your Lucknow days, how were you as a student? एवरेज, मतलब किसी किसी क्लास में मैंने बहुत अच्छा किया है, किसी किसी क्लास में बिल्कुल ही फेल हो गई मैं. सो देयर वाज अ टाइम आई स्टडीड, आई टिल 9th आई थिंक आई वाज अ गुड स्टूडेंट. आई स्कोर्ड 90% इतना. Wow. हाँ, 80 के ऊपर ही आते थे. 9th के बाद फिर मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, मैं फेल वेल होने लगी. घर से प्रेशर था कि अच्छे मार्क्स लाने हैं? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स. बहुत प्रेशर था हाँ हाँ, उसमें. बहुत. तो आप पॉपुलर थे, लाइक अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड स्टूडेंट, वर यू पॉपुलर एज अ पर्सन in your class? मतलब क्लास, हाँ, I think I was. In my head, I think I was always popular. Even in school, I feel the juniors knew about me, the seniors Yeah. knew about me. किसी ने actually पता, मेरे स्कूल के सामने when I was in school 11th 12th स्कूल के सामने कैंटीन हुआ करता था. समथिंग आई डोंट नो, सम शॉप्स जहाँ बच्चे खाना वाना खाने जाते थे, तो एक वॉल थी, किसी ने उस पर लिख दिया था आई लव उर्फी जावेद. Oh my God. समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो. हाँ, ये Did भी you हुआ feel था. good or were you scared? Scared तो अंदर अंदर से I was very like wow, Yeah. amazing. Yeah. So जब आप फेमस हो गए तो क्या आपके लखनऊ के फ्रेंड्स ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, या फिर एक होता है ना कि यार ये तो मेरे स्कूल में थे, मैं इनको जानती हूँ. When you become famous, a lot of people who never spoke to you also kind of make up stories that they were related to you and somehow. आपको कभी ऐसा हुआ? नहीं, मतलब मुझे नहीं पता if they make up story. I'm very sure they some people do that. But जो friends तब थे वो अभी भी हैं. मतलब You're वो तो still- है ही है. you're still in touch with them. I'm still in touch with a lot of my Yeah. schoolmates and batchmates, और जो लखनऊ के दोस्त हैं वो अभी भी हैं. बाकी Right. हाँ, कभी मुझे भी ऐसे, मेरी बहन मुझे बता देती है कि मेरे एक फ्रेंड का फ्रेंड है, he was saying this guy that he dated you, and I'm like, what's his name? He's like Utkarsh, some random, like Yeah. Utkarsh. I'm like, who Utkarsh? He's like, no, he dated you. And then कभी मुझे सुनने को मिलता है तो लखनऊ में that this guy was saying he dated you. I'm like, I don't even know about this guy. It's disgusting, no, in a way. Whatever makes them sleep at night. I don't know, like friend तक ठीक था, they directly say dating, which is so fucking weird. It is. It Yeah. is. Yeah. Okay, so are you giving auditions these days? Because I know that your real dream is to act. Real dream तो नहीं बोलेंगे. My real dream is money. But Okay. I don't mind acting. Audition, यार पता है वही मेरे अंदर एटीट्यूड इतना आ गया है ना, तो आई एम लाइक मैं क्यों ऑडिशन दूँ. मुझे वो अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ, अपना एटीट्यूड थोड़ा कम करने पे. तो 1-2 ऑडिशन मैंने दिए हैं, अभी शुरू किया है. पहले तो मैं ऐसे हो गई थी, लेना है तो बिना ऑडिशन के लो, लाइक, एंड दैट वाज वेरी fucked up of me to say that, because no one has seen me as an actor. So beach mein I wasn't giving auditions because I was like, everyone knows me, everyone knows me. That was wrong attitude, I feel. But now I'm going to go to some acting classes, and then maybe start giving auditions. But that's just for fun of it, like for the fun part. I'm not gonna, it's I don't look at it as a career, the only career that I want. A lot of celebrities have spoken really well about you, and some of them have not spoken well about you. And I feel कि उन्हीं की तरफ से कई बार स्टार्ट होती है चीज़ें. आप कुछ कहते भी नहीं हो किसी के बारे में, कोई आपके बारे में कुछ भी बोल देता है. I have never started anything. Yeah. So why do you think that people speak badly of you when they have not even met you, and उनका कुछ लेना देना नहीं आपसे, ना ही आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर करो? Why do you think they do that? इरिटेट हो जाते होंगे, मतलब स्क्रीन पे देख के. तो ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे अब या तो अगर मैं नॉर्मल एक्टर होती हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ पर मुझे वो फेम नहीं मिल रहा है. सडनली मैं देखती हूँ स्क्रीन पे एक लड़की आके ऊट पटांग कपड़े पहन रही है, छोटे कपड़े पहन रही है, और उसको इतना फेम मिल जा रहा है. सो इट्स जस्ट
जेलसी? इनसिक्योरिटी, हाँ कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी आ जाती है, कहीं तो बोल देते होंगे, बुरा लगता होगा उनको। फिर पता है इंसान को ना थोड़ा इवॉल्व होना पड़ेगा उन सब चीज़ों से ऊपर सोचने के लिए। अब जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ राखी सावंत को बोल देते हैं बुरा भला, तो कुछ चिल रहते हैं, तो मतलब इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट एंड हाउ इवॉल्व यू आर टू, नज़रिए का फ़र्क है बस। राइट। तो आप को ट्रोल्स से ज़्यादा बुरा लगता है कि ये जो सेलिब्रिटीज़ अगर आपके बारे में बुरे बोले तब ज़्यादा बुरा लगता है? पहले लगता था, अब मुझे नहीं लगता है। ट्रोल से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं था नहीं, आपको? मुझे किसी चीज़ से, मुझे मेरे बैंक अकाउंट से फ़र्क पड़ता है। जिस दिन Right. बैंक अकाउंट का ऐसे पैसा कम होता है उसी दिन मुझे बुरा लगता है। और किसी के बोलने से नहीं बोलने से मुझे अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा उर्फी, बिकॉज यू आर नोन फॉर योर फैशन चॉइसेस, कभी कभी आपको लगता है कि पता नहीं कितने टाइम तक मैं ये चीज़ चला पाऊंगी, लाइक यू नो, बिकॉज एवरी वन हैज़ टू इवॉल्व। कभी आपको लगता है कि अच्छा ये तो मैंने कर लिया, वॉट नेक्स्ट? बिकॉज एवरी वन, यू शुड नॉट बिकम जस्ट द फ्लेवर ऑफ द सीजन, इट शुड यू नो टर्न समथिंग into something more, right? Do you ever fear that कि पता नहीं ये कब तक लोग मुझे मेरे फैशन के लिए जानेंगे या पसंद करेंगे? फियर तो नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो ये भी मिल गया, बहुत बड़ी बात है। मतलब जो चीज़ कभी सोची ही नहीं थी वो भी हो गई, तो इससे नीचे क्या ही जाएगा इंसान, इससे ऊपर ही जाएगा। या तो स्टैग्नेंट हो जाऊंगी या ऊपर चली जाऊंगी। फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। अच्छा आपको डर लगता है कभी कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो, मेरी जॉब चली गई तो? लगता तो है कभी कभी। तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी लगता है, बट वही है कि आप अपनी तरफ से जो आता है आप वही करोगे। अब तुम ये इंटरव्यू लेती हो, जर्नलिज्म करती हो, यही करोगी ना। Right. तुम बैठ के थोड़ी कुछ और करने लगोगी। Right. तुमको जो आता है, तुमको जिस काम के लिए Exactly. हायर किया है तुम वही करोगी। Right. तो मुझे जो आता है मैं भी वही कर रही हूँ। बाकी हाँ तुम और भी जगह हाथ पाँव मार सकती हो टू अर्न एक्स्ट्रा मनी और व्हाटएवर, बट यू गोना डू व्हाट यू नो बेस्ट। एग्जैक्टली। दैट्स इट। उसके आगे तो यार ऊपर वाले की है, अभी उसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। How is your relationship with Komal Pandey? Because I remember she was one of the first influencers, you know, who supported you and even shared your posts. And I think maybe you guys connected because she also suffered trolling because of some similar reasons, right? So how did you connect with her? अच्छी लगती है मुझे, मतलब वी स्पीक थोड़ा इधर उधर, वी हैव मेट। शी इज अ स्वीट गर्ल एंड मतलब शी इज वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ पीपल, दैट आई हैव नोटिस्ड अबाउट हर। शी इज वेरी एक्सेप्टिंग। What do you think about Diet Sabya? थिंक आई डोंट, इट्स अ कूल पेज, दैट्स इट। आई थिंक इट्स अ कूल पेज, या। Right. Okay. So आपके आगे के प्लान, जैसे आपने बताया कि you want money, have you ever thought of starting a business, maybe your own fashion line or something? थॉट्स तो रोज़ नए नए आते हैं। कभी सोचती हूँ वेटर ही बन जाऊँ, सच बता रही हूँ। तो कभी Okay. सोचती हूँ मैं कि कुछ चड्डी ब्रा बेच दूँ, कभी सोचती हूँ कि कपड़े बेचूँ, हाँ। कभी सोचती हूँ नहीं ये बेच दूँ। अरे पर कहाँ कैसे नहीं पता है मुझे। तो कभी कभी रोज़ नए थॉट्स आते हैं। अभी अब आई डोंट नो वो Yeah. थॉट्स, कौन सा थॉट किस दिन इतना ज़्यादा स्ट्राइक करेगा कि मैं बिल्कुल बोलूँगी अब तो ये करना ही करना है। तो लेट्स सी। मेरे पास मीन्स भी नहीं है ना, मतलब आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट थिंग्स। वो भी एक अभी बैरियर है। मतलब आई कांट जस्ट वेक अप एंड बी लाइक आज मैं कपड़े बेचूंगी। Yeah. ऐसा नहीं कर सकती। देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व, there's a lot of things involved and I just don't want to risk everything, like all the money and all my time just for it. टाइम, पैसा ज़्यादा तो टाइम, इंसान पैसा तो कमा लेगा, मैं वक्त कहाँ से कमाऊंगी जो अगर मैं लगा दूंगी। उर्फी, आप दिल के बहुत अच्छे हो, क्योंकि जो नहीं जानते, जो आपके पीआर है, जब उनका बर्थडे था उन्होंने अपनी स्टोरीज पे डाला था कि कैसे आपने उनको आईफोन गिफ्ट अरे किया। oh God. या ऑल्सो I don't like देयर इज एन this. इन्फ्लुएंसर अनीश, आई गेस, आपने उनकी जो हाउस हेल्प है उनको साड़ीज भेजी। तो आपको नहीं लगता कि वो चीज़ें लोगों को आपके बारे में ज़्यादा पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका एक थोड़ा ऐसे हार्ड शेल है, लोग वो पार्ट देख नहीं पाते हैं। क्यों दिखाना है मुझे? ये मेरे दिख रहे हैं ना, बहुत है। बाकी उसके अंदर का देखने की जरूरत नहीं है ना। But no, but seriously, Oh, don't you I don't think give like a, नहीं मुझे, I do it for myself, I do it to, क्या फर्क पड़ता है लोगों को पता चले ना पता चले। ऑलराइट, आपको कभी नहीं लगता कि, मैं ये नहीं कह रही कि आप शो ऑफ करो उस चीज़ का, मतलब, बट कभी नहीं लगता कि यार मैं ये भी हूँ, लाइक आई एम ऑल्सो। पर मुझे पता है ना,
और जो लोग हैं जो मेरे साथ है उन्हें पता है, बाकी जिसको नहीं पता है वो नहीं पता है। आप हमेशा से ही ऐसे थे या फिर आपको लगा कि जब आपने खुद वो एडवर्सिटीज देखी लाइफ में कि कोई चीज़ चाहिए होती है और फिर वो नहीं मिलती तो उसकी फीलिंग, तो इसलिए आप जनरस ज़्यादा बन गए? हमेशा से तो कोई ऐसे नहीं होता है, तुम भी हमेशा ऐसी नहीं थी। तुम जो कल थी तो तुम वो आज नहीं हो। वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर थिंग्स एंड कुछ चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं। कुछ चीज़ें ना इंसान अपने माँ बाप से सीखता है ना किसी से सीखता है, अंदर से ही होती हैं। Right. How did your mom and your sister react to this whole craze for Urfi Javed? उनके लिए तो मैं अभी भी वही हूँ, मतलब वैसे वो उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है। They're still, मतलब my family, they're chill about it. अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे प्रीति साना ने एक इंटरव्यू में बोल रही थी कि अगर जैसे कोई उनको ट्रोल करता है, कुछ बुरा लगता है, तो उनकी मॉम पैनिक हो जाती है और वो उनको रिप्लाई करने लगती है एंड शी हैज़ टू से मॉम इट्स ओके, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल। तो जब आपकी मॉम या सिस्टर कुछ अच्छे कमेंट्स ऑफ कोर्स आते हैं, लेकिन वो होता है ना, पेरेंट्स को एक बुरा दिखता है तो लगता है मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ऐसे बोलने की। सो व्हेन दे सी दैट काइंड ऑफ नेगेटिव कमेंट्स, व्हाट डू दे लाइक से, और लाइक हाउ डू यू डील विद दैट? क्योंकि कभी कभी लगता है कि खुद को प्रोटेक्ट करने से ज़्यादा ये सबके लिए अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि I've never spoken to my mom about this actually. I don't know. There's a line which I have drawn. I'm not a very emotional person. मैं इतना emotions के बारे में बात नहीं करती हूँ. And लोग मुझसे भी उस बारे में बात नहीं करते हैं। मुझसे ना ऊपर की conversations हो जाएंगी because people know मैं नहीं हूँ emotions express करने. If you start crying in front of me right now, I'll just be like, stop crying. But the next moment I will do something for you. I'll try कि मैं कुछ करूँ तुम्हारे लिए, but I will not. मैं बातों से comfort नहीं कर पाती हूँ लोगों को, पैसा से comfort कर लेती हूँ। इसीलिए I need money in my life. That's like great thought that you know, आप किसी भी तरह से आप अगर किसी के लिए कुछ करना My love language is money. Yeah, gifting. Gifting. All right. You know, आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे आप जब शायद 15-16 साल के थे, आपके बस एक क्रॉप टॉप में कोई फ़ोटो किसी ने पॉर्न साइट पर डाल दी थी एंड उसकी वजह से आपको काफ़ी पीटा गया, हालांकि आपकी गलती नहीं थी बिकॉज इट वाज नॉट यू, राइट? कैन यू टेल मी हाउ डिड यू डील विद दैट? बिकॉज एक तरफ इतनी शर्म अटैच्ड होती है कि लाइक हालांकि कुछ ऐसा नहीं था उसमें कि यू नो इट वाज नथिंग, देयर वाज नो न्यूडिटी, बट एक लड़की के साथ जब ऐसा हो जाता है तो इतनी शर्म अटैच होती है कि देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। हाउ डिड यू डील विद दैट फेस? एंड आई एम आस्किंग यू दिस बिकॉज जो साइबर क्राइम है, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कई लड़कियों और इवन लड़कों की लाइफ, मतलब यू नो people literally come to a point where they want to commit suicide कि वो shit People ऐसा have हो गया। committed suicide because of this. Yes. How, at such a tender age, how did you deal with? I shudder to think. Honestly. डील तो I mean क्या है, रोया धोया रोती रहे, उस उम्र में क्या ही पता है क्या डील करते हैं। आपको मतलब इस बात पे ज्यादा रोना है कि आपके फैमिली नहीं समझ रहे थे, कि आपको ये भी लग रहा था? ये भी नहीं पता किस लिए रोना आ रहा था, बस अभी तो इतना हो जाता है, लोग इतना शर्मिंदा कर देते हैं कि यू जस्ट कीप क्राइंग। ओह गॉड, अभी क्या बताऊँ, फिर उस समय तो इतना कम उम्र में कुछ समझ ही नहीं आता है। सो you're just so fucked in your head. डील तो ना तब कर पाए थे ना आप कर पा रहे हैं। I mean deal, it's, I think I've never dealt with it, I've never spoken about it much, even to myself. बस यही है कि all these things made me stronger. मतलब अगर उस टाइम सुसाइड कर लेती तो मर जाती, सुसाइड नहीं करी तो इस वजह से I've become like very thick skin now. You do whatever you want to do. अब तो पॉर्न साइट पे डालो, जो करना है करो, मुझे अभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सो एवरीथिंग इन योर लाइफ काइंड ऑफ, it's how you look at it. Either you can let it break you or you can let it make you stronger. Because there's so much awareness about mental health now, and also thanks to you, people like you, because you know it's not easy to accept your failures in life because everybody is standing there to attack you कि अच्छा तुम्हारे साथ तो ये हुआ था। Like it's just weird human mentality कि अगर आपका झगड़ा हो गया किसी से, the first thing if they know your weakness they will say कि you know this is something that has happened with you are like this and all, which is so like weird, but you still accept knowing that you are a public figure and everything, so kudos to you. So given that, have you ever thought of maybe going to therapy? Because I am sure that you know I have, but I don't know, I'm waiting for something. पता नहीं किसका वेट कर रही हूँ। मे बी आई एम वेटिंग जिस दिन बिल्कुल ही एक मेंटल ब्रेकडाउन होगा, शायद उस दिन जाऊँगी। आई एम अवेयर, बट लेट्स सी, आई डोंट नो व्हेन। आई एम अवेयर,
I know there are a lot of issues with me. I'm not perfect. I also have very bad anger issues, and that definitely stem from my childhood trauma. Like bad anger issues. I go mad crazy. I black out. मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं चीज़ें पटकती हूँ और वो 2 मिनट बाद मैं खुद रियलाइज़ करती हूँ कि ये क्या हो गया, what happened to me. I think that's childhood trauma. I think yeah, I need therapy. But the point is ये realization भी मेरा अभी 1 साल में हुआ है. So this is the 1 year that I've realized that maybe it's because of my childhood trauma and I need to, you know, get this solved. So अभी realization हुआ है, थोड़ा और होगा तो शायद चली जाऊँगी. कभी आपके फादर ने आपको कांटेक्ट करने की नहीं. कोशिश की? नेवर. कभी आपको कभी मन करता है कि कभी कुछ? नहीं. Never. Okay, so what are the 3 things that you want right now in life? I want to be a billionaire. Yeah. I want a very big bungalow with a swimming pool, and I want my family, everyone in the family, to have a good career. उसी अब आप सामने वाले की इंटेंशन समझ पाते हो क्योंकि अभी आप फेमस हो, राइट? सो ऑब्वियसली हर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहेगा एंड शायद कोई मुंह पे ज़्यादा मीठा बनेगा बट अंदर से होगा नहीं, या फिर कोई जानबूझ के आपको क्योंकि आप फेमस हो तो चाबी लगाने की कोशिश जिसे कहते हैं. आप समझ पाते हो सामने वालों के इंटेंशन? समझ पाती हूँ, अब तो मैं बच्ची नहीं रहेगी, बट ऑल्सो I don't give access to a lot of people. It's nearly impossible to talk to me. I do not talk to anyone. I stay to myself. मैं अपने घर में रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, किसी से बात नहीं करती, ज़्यादा दोस्त नहीं है. Very limited people, and I hate talking to strangers. I hate going to public events. So I don't give that access to people. और बाकी अभी अगर कोई मुझे मस्का लगा रहा है, पर अगर मुझे भी फ़ायदा है तो मैं भी मस्का खा लेती हूँ और लगा भी लेती हूँ. आपका कोई सेफ प्लेस है कि जिस दिन उर्फी को बहुत ही लाइक लो फील हो रहा है कि एक होता ना, हेलो लाइक यू नो आई एम रियली फीलिंग लो, प्लीज बी देयर फॉर मी. डू यू हैव एनी सेफ प्लेस लाइक दैट? No. सो यू हैव टू डील इट ऑन योर ओन. जैसे आप कुछ नहीं, एक पेस्ट्री मुझे खा लेती हूँ, थोड़ा रो लेती हूँ, मूवी देख लेती हूँ, चलो जाती हूँ फिर. पर सबका ही आता है यार, अभी क्या करें, कहाँ से सेफ प्लेस, कहाँ से नए नए लड़के लेके आए या लड़कियाँ लेके आए, सब चले जाते हैं. जैसे एक इंडिया में एक इमेज भी हो जाती है विच इज़ वेरी वियर्ड कि अगर आप किसी तरह के कपड़े पहनते हो, राइट? ऑब्वियसली हर जगह टू जगह डिपेंड करता है. तो फिर अगर आप और छोटे कपड़े पहनोगे तो लोग आपको उस तरह से समझेंगे. Like you mean like a slut? Yeah, I mean there is slut shaming. There is no. But I want to be slut shamed. I like that. I want to be called a slut. That gives Why you would power. you like? Why would you say that? Like, Why is it a bad thing? Why? I take it as someone. Whenever someone calls me slut, I take it as a compliment because I do not live by your rules. I'm living by my own rules. I am in charge of my own destiny. I'm in charge of my own fate. Yeah. मैंने अपनी किस्मत नहीं छोड़ी अपने बाप दादा के हाथों. मैंने अपनी किस्मत का अपने हाथों में ले लिया कि मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी. तो बस अब इस पे तुम मुझे स्लट कहो, जो कहो, बहुत अच्छी बात है यार. कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, आई एम श्योर जो भी लड़की है यहाँ पे भी कभी, मतलब अगर आप किसी लड़के से हंस के बात कर लोगे जस्ट नॉर्मली तो वो उल्टा ले लेते हैं कि अच्छा ये मेरे से हंस के बात कर रही है तो मतलब कुछ होगा. अगर आप अपने लिए ड्रेसअप कर रहे हो तो उनको पता नहीं कहाँ से ऐसा लगता है कि ये जानबूझ कर टेंशन लेने आई है. तो एंड दे बिहेव इन अ वियर्ड वे विद यू. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? I don't talk to a lot of guys. बट दे मस्ट हैव ट्राइड टू टॉक कि अच्छा ऐसे कपड़े पहनिए तो मतलब यू नो आई थिंक मेरा No, चांस है. मेरी लड़कों से बात ही नहीं होती है, और जिनसे भी होती है आई टॉक टू वेरी क्वालिटी पीपल. मतलब मैंने बोला ना, मेरा एक्सेस ही नहीं है लोगों को. तो जितने भी लोग मेरे आसपास हैं सब बहुत अच्छे हैं. जो लड़के हैं मेरी लाइफ में मेरे अच्छे दोस्त हैं और सब बहुत अच्छे, मतलब अच्छे लड़के हैं यार. सो मैं उन लोगों के आसपास भी नहीं हूँ जो इतने गिरे हुए हैं. ऐसे लोगों के आसपास मैं ऐसे लड़कों से बातें क्यों करूँ? मुझे ऐसी दोस्ती नहीं रखनी. मुझे अगर किसी फ्रेंड के भी ऐसे दोस्त हैं, मैं अपने दोस्तों को पहले ही बोल देती हूँ, सुनो मतलब मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, ये नहीं आना चाहिए क्योंकि मुझे पता है आदमी ऐसा है या औरत ऐसी है. मेरा एक्सेस ही नहीं है लोगों को. डू यू मिस एनीथिंग अबाउट लखनऊ? ना, खाना पीना, मतलब ऐसे इतना तो कुछ नहीं. मिस क्या, जब फ्लाइटली चले जाओ, इसमें क्या है, वो मैं खुद नहीं जानती हूँ, मेरा मन ही नहीं करता. अच्छा, एक ये बात बताइए कि अभी रिसेंटली आप जब एयरपोर्ट पे थे, एक अंकल मॉरल पुलिस बन के आपको बोलने लगे कि आप ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, इंडिया का नाम खराब कर रहे हो, ये कर रहे हो, राइट? आपने काफ़ी उस टाइम बहुत ही स्टर्डी होके, मतलब यू नो ऐसी सिचुएशन में इंसान हकबका जाता है कि मैं क्या करूँ.
बट आपने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। क्या अच्छे से रिस्पॉन्स किया, मतलब कंटाप in the लगाना sense चाहिए कि- था मुझे। मैं तो भूल गई, मैं तो लिहाज कर लिया बुढ़े का, मैं तो लगा देना चाहिए था दो। क्या अच्छे से किया, कैमरा नहीं होता तो 4-5 तो लगा चुकी होती मैं। इट्स वियर्ड ना कि अगर कोई लड़का ऐसे होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती, बट जस्ट बिकॉज यूर अ गर्ल कोई ऐसे आपको मतलब अरे बुढ़ा फुटेज ले रहा था, वो बुढ़ा भी बहुत तेज था। बाद में जब कैमरा गया ना, फर्स्ट सेल्फी के लिए आया दौड़ते दौड़ते। संजित माई मैनेजर को वही जो बोल रहा ना, Yeah. संजित ने उसको धक्का मारा। मैंने कहा तू बेवकूफ है संजित, तुझे आने देना चाहिए था उसको। Right. लोग देखे तो उसकी असलियत, पिक्चर लेने आ रहा था, वो भी फुटेज ले रहा था यार बुढ़ा चूतिया। वेल बट यू हैव टू से जो मैंने देखा उस पे आपने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। वो इसीलिए किया क्योंकि कैमरा थे, नहीं होता तो लगा देती मैं उसको बुढ़े को। मैं बड़े छोटे का लिहाज नहीं करती, इज्जत दो, इज्जत लो और जी में मत घुसो। तुम घुसोगे तो मैं कहीं और घुस कर डंडा दे दूंगी, वो है सीन। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है एंड आई होप कि मैं जो जिस तरह से फील करूँ उस तरह से आर्टिकुलेट कर पाऊँ। जैसे कुछ लोग ने बोला, जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही थी, बहुत लोग आपको सपोर्ट करते कि यू नो व्हाटएवर शी इज़ डूइंग, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम अपनी लाइफ में रहो। देन देयर वर अ फ्यू कमेंट्स कि देखो अगर कोई लड़का होता और वो सिर्फ अंडरवेयर में घूम रहा होता तो ही मस्ट बी ऑल्सो मेकिंग अदर फील अनकम्फर्टेबल, तब आप ये चीज़ नहीं बोलते। तो वाई डज नॉट द सेम थिंग अप्लाई टू women? What do you have to say to that? और मैं But कब why? घूमी ब्रा पैंटी में? मतलब लाइक आई हैव नॉट जस्ट वन बिकिनी, आई वन लाइक आउटफिट्स व्हिच वर स्किम्पी, ओके आई कैन Right. से दैट। बट देन कितना फर्क है मतलब औरतों और आदमियों में। आदमी चाहे जैसे घूमे, उसको रेप का डर नहीं है। हिज बॉडी इज नॉट सेक्सुअलाइज्ड, अ वुमेन्स बॉडी इज सेक्सुअलाइज्ड एंड आई नो दैट, I very well know that, but I want to take charge of my body. I told you. Yeah. I don't want my. I will make my own decisions. Yeah. I will be the in charge of my fate. मुझे अपनी किस्मत, मुझे अपने decisions का इंचार्ज खुद बनना है कि कल को मैं कुछ भी हो मेरे साथ, हाँ. मैं ना अपने पे ही बोलूँ कि ये मेरी वजह से हुआ है। मैं ये नहीं बोलूँ ये मेरे बाप दादा ने मेरी जिंदगी खराब कर दिया, किसने, मुझे खुद ही करना है। अच्छा, इतने टाइम में आपके साथ सबसे बेस्ट चीज़ क्या हुई है? जब से आप मुंबई आए हो, जब से आप ये नई लाइफस्टाइल देख रहे हो, जब से आप फैन फॉलोइंग देख रहे हो, सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या लगी कि हाँ चलो दिस वाज रियली गुड दैट हैपेंड? मैंने सच बताऊँ तो हाँ, एक प्रोजेक्ट की बात फाइनलाइज हुई थी, तो वो अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर वो हो गया आगे तो या दैट ऑल द बेस्ट फॉर दैट। या सो इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। इफ इट या फाइनलाइज हुई है बट वी हैव नॉट स्पोकन अहेड अबाउट इट, राइट। सो इफ दैट हैपेंस आई विल बी लाइक दैट वाज माय हैप्पीएस्ट डे। या सो अभी जैसे कास्टिंग के लोग ऑब्वियसली व्हेन यू वर नॉट फेमस तब एक हर को अलग ट्रीटमेंट मिलता है। नाउ दैट यू हैव बिकम फेमस, डू यू सी एनी चेंज इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स यू कि लाइक But now तो they don't want to work with me at all. रियली? Yeah, I don't know, कास्टिंग वाले ऐसे चेंज बिहेवियर मुझे समझ ही नहीं आता है, पता है मैं उतना नोटिस ही नहीं करती हूँ। और अभी तो मतलब मेरा कुछ ऐसा कास्टिंग वालों से बात हो ही नहीं पाती है क्योंकि कोई ऑफर ही नहीं आता है। बिहेवियर तो इनफैक्ट और गंदा हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है। बट लाइक इट्स वेरी स्ट्रेंज कि आप एक मुकाम पे पहुंच गए हो फिर उनका बिहेवियर आपकी तरफ weird क्या हो गया। पता नहीं यार, अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े महीनों पहले हुआ था। सम गाय फ्रॉम नीरज पांडेज ऑफिस, आई डोंट नो इफ, मैंने पुलिस कंप्लेन भी करी थी उसके खिलाफ, पता नहीं क्या हुआ उस पुलिस कंप्लेन का। ही जस्ट कॉल्ड मी एक नीरज पांडे के ऑफिस आना है। हाँ। मैंने कहा कौन है नीरज पांडे, मैंने ऐसे ही बोला मैं नहीं जानती। तो बोलता है कि कैसे नहीं जानती, मैं उसका असिस्टेंट हूँ। ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी कि तू सड़क पे नंगी घूमती है, तेरी क्या औकात है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब पता नहीं रियल नीरज पांडे का था कि नहीं था, कौन था क्या था, कुछ भी नहीं पता है मुझे। He gave you rape threats? नहीं मतलब बहुत ये मार दूंगा वो कर दूंगा, रुक तेरे साथ क्या, पता नहीं क्या थ्रेट्स, बस थ्रेट दिया जा रहा था, कुछ डायरेक्टली नहीं बोल रहा था। रेप बोल लो, मर्डर बोल लो, मैंने कंप्लेन करी है, पुलिस कंप्लेन भी करी है। कुछ एक्शन हुआ? पता नहीं, मुझे नहीं लगता क्योंकि मैंने ऐसे 50 कंप्लेंट्स करी हैं, शायद हुआ था, पता नहीं। तो आई डोंट इवन नो इफ इट वाज फ्रॉम हिज ऑफिस और नॉट। इट वाज इन द मीडिया, ये न्यूज़ बाहर भी आई थी कि मतलब ऐसा ऐसा मुझे कॉल आया है, ऐसा ऐसा हुआ था। सो आई डोंट नो, आई थिंक पीपल लाइक डोंट रिस्पेक्ट मी मच। Some What's people. the best part of being Urfi Javed? I get to decide my own life. That is the best thing. I can do whatever the f I want. I'm not dependent. I don't need permission from anyone. And also I'm very liberated, I feel. I can go out. I can do whatever I want
विदाउट थिंकिंग लोग क्या कहेंगे. Right. तो अभी मेरे अंदर तो वो है ही नहीं. अब तो मैं चाहती हूँ कि लोग कहें, लोग नहीं कहेंगे तो क्या होगा. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग उर्फी. And what's the worst? बस ऐसे 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 वर्स्ट मुझे कुछ नहीं लगता. मैं सोचती हूँ मतलब ये तो पार्ट एंड पार्सल सबका है. वर्स्ट ऐसा कुछ नहीं है. थोड़ा मेंटली हाँ हो जाता है बट ठीक है. Do you remember the first big purchase that you ever made? कार. अच्छा, आपने बोला कि आपको डिज़ाइनर चीज़ों का ज़्यादा शौक नहीं है, बट इफ़ यू लव फैशन, मतलब वो थोड़ी ऐसे एनॉमली लगती है कि आप व्हाई नॉट. डिजाइनर शौक है हाँ. बट यार अभी मैं ना मतलब वही है कि मैं उतना कमा नहीं रही हूँ कि मैं 10 लाख का. इट्स लाइक इवन इफ आई एम अर्निंग 10 lakhs आई जस्ट कांट स्पेंड इट ऑन अ बैग. Right. I will try to save it. It's that mentality that I still have. Yeah. Because at a point I didn't have that money, so Yeah. अभी मैं सोचती हूँ saving में ही चला जाए and maybe on something Right. I would want to invest on my fashion. शौक तो यार पैसा आता है तो शौक भी बदलने लगते हैं, हमारे भी बदल जाएंगे. Out of all the looks that you have ever displayed on camera, आपके 3 favorite look कौन से रहे हैं जो आपको लगे कि yeah, this was like I have looked my best in these? I think I think I am self-obsessed. I can't lie about it. Yeah. I think I look good in everything. उस time के लिए I feel yeah perfect. Okay. Okay. All the best, Shruti. Thanks for Thank talking you. to us, and it was lovely knowing you and Thank you. getting to know you. And I think you're a lovely, lovely girl. And Thank you. Hi, this is Urfi Javed and you're watching Bollywood Hangama.